سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، عرب دنیا میں کیوں سوگ کی لہر ہے، کس کا انتقال ہوا، گیان واپی مسجد کے بعد متھرا عیدگاہ مسجد کے سروے کے سلسلے میں عدالت نے کیا کہا ہے، اور تاج محل میں مورتیوں کے ہونے کو لے کر کے ASI نے انکار کر دیا ہے، تو امانت اللہ خان کو ایک طرف دہلی پولیس شیٹر کہا تو وہیں پر ضمانت بھی ملنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ کشمیری پنڈتوں کو لے کر کے BJP کا کیسا دوہرا رویہ ہے، ایک طرف ان کے نام سے ووٹ حاصل کرتے ہیں تو دوسری جانب مظاہرین پر لاٹھی چارج بھی ہے۔ ناظرین گرامی، الگ الگ طرح کی ویڈیوز آئی ہیں، یوکرین میں کتنے بچے ابھی تک جان گئی، اور ترک شہریت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح شرائط بدلے ہیں، اور پاکستان میں مندر پر ہوئے حملے کیس میں 22 افراد کو 5 سال کی قید یعنی جیل کی سزا ملی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے جہاں مندر پر ہوئے حملے کیس میں سزائیں مل رہی ہیں اور بھارت میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرکیف یہ ساری تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پھیلانے میں کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے اسی خبر کی بات کریں گے جس خبر کو لے کر کے اس پر بحث ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوئی۔ دراصل پاکستان میں ایک مندر پر اٹیک ہوا تھا، اور آپ جانتے ہیں، اور اس بات کو لے کر کے یہاں کے میڈیا میں، بھارت کے میڈیا میں کس قدر جو ہے ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے گزشتہ سال گنیش مندر پر حملہ کیس میں 22 افراد کو 5 سال کی قید کی سزا سنا دی ہے۔ 62 دیگر ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جولائی 2021 میں لاہور سے تقریباً 590 کلومیٹر دور رحیم یار خان ضلع کے بھونگ قصبے میں سینکڑوں لوگوں نے گنیش مندر پر حملہ کیا تھا۔ حملے کی شدید مذمت کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ کے حکم پر حکومت نے مشتبہ ملزمین سے جرمانے بھی وصول کیے تھے۔ پھر سپریم کورٹ کے حکم پر مندر کی تزئین و آرائش بھی کی گئی، اور مندر پر حملہ ایک 8 سالہ ہندو لڑکے کے مبینہ طور پر ایک مدرسے کی بے حرمتی کے جواب میں کیا گیا تھا۔ مسلح ہجوم نے مندر میں زبردست توڑ پھوڑ کی، آگ لگا دی۔ اس دوران مندر کی مورتیوں، دیواروں اور دروازوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اس مقدمے میں 84 ملزمان کے خلاف مقدمے کی سماعت گزشتہ سال ستمبر میں شروع ہوئی تھی اور گزشتہ ہفتے ختم ہوئی تھی اور سزا مل گئی۔ ناظرین گرامی، اس خبر کے سامنے آنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھیے، جس پاکستان کو لگاتار تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ اقلیتوں پر ظلم کرتا ہے، وہاں کس طرح سے ایک مندر پر حملے ہوئے کیس میں صرف 1 سال کی مدت میں تمام ملزمان کو سزائیں ملتی ہیں، اور دوسری طرف بھارت ہے جہاں پر جو ہے خود جو ہے مسجدوں پر قبضہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور لگاتار الگ الگ مسجد میں الگ الگ دعوے کر کے مسجدوں کو ہڑپنے اور قبضہ کرنے کی ایک طرف کوشش ہو رہی ہے، تو دوسری جانب جو ہے مندر پر حملے کیس میں لوگوں کو پوری طرح سے سزائیں مل رہی ہیں۔ یہ فرق ہے، یہ کہتے ہوئے جو ہے مختلف لوگوں نے اس خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، کشمیری پنڈتوں کو لے کر کے آخر BJP کا یہ دوہرا رویہ کیوں ہے، یہ کہتے ہوئے آج ایک ویڈیو شیئر کی گئی جس میں کل جو ایک کشمیری پنڈت کو مار دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا ان کے ڈیوٹی کے دوران۔ اس بات کو لے کر کے ناراض لوگوں نے آج جو ہے احتجاج کیا، اور احتجاج کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی، تو اس پر جو ہے آج لاٹھی چارج کیا گیا ہے۔ فورس نے ان کو زبردستی احتجاج کرنے سے روکا، گرفتاریاں ہوئیں، اور جس طرح سے زبردستی ہو رہی ہے، آنسو گیس کے گولے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے اس وقت نظر آ رہی۔ اسی بات سے ناراض ہو کر بہت سارے لوگوں نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہے BJP کا اصل رنگ اور اس کا اصل روپ اور اس کا اصل چہرہ، کہ جس نے کشمیر فائلز بنانے والے ڈائریکٹر ان کے تمام لوگوں کو زیڈ سیکورٹی فراہم کی تھی، آج انہی کشمیری پنڈت اگر اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں تو ان پر آنسو گیس کے گولے داغے جا رہے ہیں، ان پر لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ یہ ہے اصل میں BJP کا چہرہ، یہ کہتے ہوئے جو ہے اس وقت اس تصویروں کو پیش کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔
नाज़रीन ग्रामी, आपको मालूम होना चाहिए कि कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के कत्ल के ख़िलाफ़ उनके कुछ मुआविरीन ने आज सड़क पर उतरकर नाराज़गी ज़ाहिर की। यहाँ तक कि इस वक्त जो ख़बर आ रही है कि बहुत सारे मुलाजिमीन ने इज्तिमाई तौर पर जो है इस वक्त 350 कश्मीरी पंडितों ने प्राइम मिनिस्टर पैकेज एम्प्लॉइज़ के तहत जिनका तकर्रुर हुआ था, बैक वक्त उन्होंने इस्तीफ़ा किए। कापियाँ जो इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को दिया है, एहतिजाज करते हुए कि फ़ौरी तौर पर उनको जो है कश्मीर से हटाकर जम्मू में तैनात किया जाए, इसलिए कि जो है यहाँ पर उन पर अटैक हो रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से अटैक हुआ उसके बाद जिस तरह नाराज़गी पाई जा रही है और दो एहतिजाजात हुए और एहतिजाजात में जो लाठी चार्ज हुई और जिस तरह से गिरफ्तारियाँ हुई, उसको लेकर के बीजेपी का असल चेहरा सामने आ चुका है, ये कहते हुए जो है इस वक्त इस खबर को पेश करने की कोशिश हुई। नाज़रीन गिरामी, अरब दुनिया सोगवार हो चुकी है और वजह उसकी ये है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान का आज यानी 13 मई 2022 बरोज़ जुमा को इंतकाल हो गया और वो 73 साल के थे। एजेंसी ने ट्विटर पर लिखा कि वजारत सदारती उमूर ने ऐलान किया है कि झंडों के साथ 40 दिन का सरकारी सोग मनाया जाएगा। विफाकी, मकामी सतहों और निजी शोबे में वजारतों और सरकारी इदारों को 3 दिन तक बंद रखा जाएगा। इतलात के मुताबिक शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान कई साल से बीमारी से लड़ रहे थे। वो अपने भाई अबू धाबी के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन ज़ैद के साथ हुकूमती मामलात में शरीक रहे, लेकिन तवील अरसे से नासाज़ी सेहत की वजह से अलील थे। उनके जानशीन के बारे में फ़ौरी तौर पर कोई अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान ने 3 नवंबर 2004 से मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर अबू धाबी के हुक्मरान की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। वो अपने वालिद मरहूम शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान की जानशीनी के लिए मुंतखब हुए, जिन्होंने 1971 में यूनियन के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात के पहले सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। यहाँ तक कि शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान 2 नवंबर 2004 को इंतकाल कर गए और साल 1948 में पैदा होने वाले शेख खलीफा मुत्तहिदा अरब इमारात के दूसरे सदर और अबू धाबी की इमारत के 16वें हुक्मरान थे। वो शेख ज़ैद के बड़े बेटे थे, जिनका आज इंतकाल हुआ है। वाज़ेह है कि शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान 1948 में पैदा हुए। शेख खलीफा को 2004 में अपने तवील अरसे से खिदमत करने वाले वालिद शेख ज़ैद अल नहयान की जगह के लिए मुंतखब किया गया था, जो 1971 में तख्त पर बैठे थे। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने इज़हार तअज़्ज़ुर करते हुए लिखा कि मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर इज़्ज़त माब शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर गहरा दुख हुआ, जिन्होंने केरला के साथ हमेशा खुशगवार ताल्लुकात रखे। वो एक विजनरी रहनुमा थे, जिन्होंने इमारत को जदीद बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आज जो है पूरे इनके इंतकाल की वजह से अरब ममालिक में, मुख्तलिफ़ ममालिक में जो छुट्टियों का भी ऐलान किया जा रहा है। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं उस खबर की जिस खबर को लेकर कि अमानतुल्लाह खान को आप जानते हैं कि इस वक्त जो नाजायज़ तजावुज़ात या गैर क़ानूनी तजावुज़ात कह कर के मुसलमानों को दिल्ली में सताने की कोशिशें हो रही हैं, उनकी जगहों को तजावुज़ात को हटाने के नाम पर जो जुल्म हो रहा है, उसमें सबसे अहम तरीन नाम अमानतुल्लाह खान का आ रहा है, जिन्होंने जो है पूरी तरह से यहाँ की पुलिस के सामने, यहाँ की इंतज़ामिया के सामने, बल्दिया के सामने डट कर के मुकाबला किया और इसी वजह से उनको 2 मरतबा जो है गिरफ़्तार भी कर लिया गया। और उसकी गिरफ़्तारी की वजह से जो है बहुत सारे मुसलमान इस वक्त जो है इलाक़े के वोखला और बहुत सारे इलाके जो मुस्लिम इलाके माने जाते हैं, उसके अहम तरीन रहनुमा माने जाते हैं MLA अमानतुल्लाह खान, जो आम आदमी पार्टी से जो है जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ की पुलिस उनको हिस्ट्री शीटर और बुरे किरदार का हामिल करार दिया है। उनको बद किरदार भी करार दिया है, हिस्ट्री शीटर भी करार दिया, ताकि किसी भी तरह से जो है वो आवाज़ ना उठा सके। जबकि मुसलमानों का कहना है कि जो भी मुसलमानों के हुकूक़ के सिलसिले में आवाज़ उठाता है, उसको पुलिस पूरी तरह से नाकारा करने की कोशिश करती है। उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है मुक़दमात दर्ज करते हैं और जो है पूरी तरह से उनकी हिम्मतें पस्त करने और हौसले पस्त करने की कोशिशें होती हैं हुकूमत की जानिब से और पुलिस की जानिब से। बहरकैफ अब खबर ये आ रही है कि उनको ज़मानत मिल चुकी है, जो हाल ही में उनकी गिरफ़्तारी हुई थी। अब तक उनके खिलाफ़ 18 FIR दर्ज की गई है। उन्हें दिल्ली पुलिस ने मदनपुर खादर से गिरफ़्तार किया, जहां SDMC ने इंसदाद तजावुज़ात मुहिम शुरू की थी। बाद में उन्हें अदालत हिरासत में भेज दिया था और उनको जो है ज़मानत मिलने की खबरें आ रही हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कोई भी इस वक्त जो है मुसलमानों की तरह आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, उसके साथ पुलिस किस तरह का रवैया इख्तियार कर रही है और लगातार मुकदमे और केस दर्ज कर रही है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि हिस्ट्री शीटर तक का जो है नाम अमानतुल्लाह खान का बद किरदार तक कहा जा रहा है इस वक्त पुलिस की जानिब से।
बहक नाज़रीन गिरामी, अब वो बाहर आ चुके हैं और उनके आवाज़ के साथ आवाज़ उठा करके चलना भी मुसलमानों की जिम्मेदारी है, इसलिए कि वो जो है इस वक्त लगातार मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। ज्ञान वापी मस्जिद के बाद नाज़रीन गिरामी अब मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के भी सर्वे की कोशिशें तेज़ हो गई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुद्दई मनीष यादव ने कोर्ट कमिश्नर के ज़रिए श्री कृष्णा जन्मभूमि मंदिर से मुत्तसिल शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का मुतालबा कर दिया। मथुरा कोर्ट ने अर्जी को कबूल भी कर लिया है और मामले की समाअत के लिए 1 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। ख्याल रहे कि अर्जी गुजार मनीष यादव, महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा इसी नौयत की अलग अलग अर्जियाँ दायर की थी। इन सभी में कोर्ट कमिश्नर मुकर्रर करके ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी का मुतालबा किया गया था। अदालत ने इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया। तमाम फ़रीक़ैन को एक ही तारीख यानी 1 जुलाई दी गई है। अर्जी गुजार मनीष यादव के वकील देव की नंदन शर्मा का कहना है कि ईदगाह के अंदर मौजूद तहरीरों को दूसरा फ़रीक़ हटा सकता है और शवाहिद को तबाह किया जा सकता है। दोनों फ़रीक़ैन की मौजूदगी में फ़ोटोग्राफी की जाए और तमाम हक़ाइक़ को रिकॉर्ड किया जाए। इस मामले के एक और मुद्दई महेंद्र सिंह का कहना कि उसने सबसे पहले 24 फरवरी 2021 को श्री कृष्णा जन्म स्थान और ईदगाह मस्जिद केस में एक दरख्वास्त दी थी, जिसमें वीडियोग्राफी के लिए कमिश्नर की तरफ की दरख्वास्त की गई थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, प्लेस ऑफ बर्थ एक्ट के सबब इस पर कोई फैसला नहीं हो सका, जिसके बाद 9 मई 2022 को फिर दरख्वास्त पेश की गई थी। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग के प्राइम टाइम में भी आपको समझाया था कि किस तरह से जो एक्ट बनाया गया है 1947 के बाद किसी भी इबादतगाह को नहीं छुआया जा सकता, वो जिस हाल में है उसी हाल में रखा जाएगा। अब उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और जिस तरह से इस वक्त अदालतों की जानिब से जो फैसले आ रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते कि किस तरह एक एक करके निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु ले चलूँ आपको और ये बताऊं कि एक शख्स जो एक लड़की पर एसिड फेंक करके फिर उसके बाद पुजारी का लिबास ओढ़ करके पूरी तरह ढोंग रचाने की कोशिश कर रहा था, बिल आखिर 2 हफ्तों के बाद बेंगलुरु पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया है। जी हाँ, यह 28 अप्रैल का मामला है जब सुंकद कट्टे नामी एक इलाके में एक खातून पर एसिड फेंक करके ये शख्स भाग गया था, जिसका नाम नागेश बताया गया है। बताया जा रहा है कि 16 दिन के बाद बिल आखिर तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई से इस शख्स को, इस मुलजिम को गिरफ़्तार करने में कामाक्षी पाल्या की पुलिस कामयाब हो चुकी है। किसी को ना मिलने के लिए तमिलनाडु में स्वामी का एक लिबास धार करके ये शख्स लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था और लगातार इसी लिबास में घूमने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी शनाख्त ना हो, लेकिन पुलिस ने इसको पकड़ने में कामयाब हो गई है। एक खातून पर एसिड फेंक कर भागने का इस पर इल्ज़ाम है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलूं और वो है कि यूक्रेन में अब तक कितने बच्चों की मौत हुई। आपको मालूम होना चाहिए कि रशिया लगातार इस वक्त वो जंगी जराइम में मुलवस होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक माह में 100 के करीब बच्चे वो हलाक किए गए हैं यूक्रेन की जंग में और रशिया की जानिब से मारे गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इदारा बराए अतफ़ाल यूनिसेफ के एहलकार उमर अब्दी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि यूक्रेन में जंग ने बच्चों के हुकूक़ का बहरान खड़ा कर दिया है। स्कूलों पर हमले करते हुए बच्चों को तालीम के ज़ेवर से महरूम रखे जाने पर तवज्जो मबजूल कराने वाले आबिदी ने बताया कि महज 1 माह में तकरीबन 100 बच्चे इस जंग में लुक़्मा अजल बने। दरियासना अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे रिचर्ड मिल्स ने कहा कि रूस ने जंग के शुरू के बाद से अब तक यौम औसतन 22 स्कूलों को निशाना बनाया है, जिसकी वजह से बच्चों की हलाकतों की सही तादाद का अंदाज़ा बाद में ही जाकर के लगाया जा सकता है। ये तो सिर्फ ऊपरी ख़बरें हैं जिसमें 100 बच्चों की हलाकतों की ख़बरें हैं। नाज़रीन गिरामी, क्या आप तुर्की में शहरियत हासिल करने की ख़्वाहां हैं, लेकिन अब यहाँ पर तुर्क शहरियत को हासिल करने के लिए पहले से ज़्यादा दाम बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, पहले $250,000 मालियत की रियल इस्टेट ख़रीदने की शर्त में आपको गैर मुल्कियों को तुर्क शहरियत दे दी जाती थी, यानी वो तुर्की बन जाते थे। लेकिन अब इस रकम को $4 लाख कर दिया गया है और अगले महीने से लागू हो जाएगा। सरकारी गज़ेट के आज के शुमारे में सदर रजब तैयब एर्दोगान के दस्तखत के साथ शाये होने वाले फैसले के मुताबिक मकान ख़रीद कर तुर्क शहरियत की मुंतकिली के लिए $250,000 की रकम बढ़ाकर $4 लाख कर दी गई है। इस फैसले पर 1 माह बाद नाफिजुल अमल होगा, यानी कि $250,000 एक तरफ और $4 लाख किस कदर
جو ہے دگنی تگنی اس وقت جو ہے بڑھا دی گئی. ریگولیشن میں کی گئی ایک اور ترمیم کے مطابق غیر ملکی کم از کم $500,000 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی کے ذریعے نجی پنشن سسٹم میں داخل ہونے اور 3 سال تک اس نظام میں رہنے کی شرط کے ساتھ بھی ترکی کی شہریت دی جا سکتی ہے. یہ فیصلہ آج سے نافذ العمل ہوگا. یعنی کہ ترکی کی شہریت حاصل کرنے کے لیے اب تک جو قوانین تھے اس میں رد و بدل کیا گیا ہے. یہ خبر جو ہے سامنے لائی گئی ہے. بھائی ناظرین گرامی مجھے یہاں پر اجازت ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.